شراز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں گاہے بگاہے، اس پہ ان کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو اب جو 26ویں ترمیم ہے وہ بھی ہو گئی، جو کمیٹی بنی انہوں نے تیسرے نمبر پہ موجود سینئر ترین جج جو ان کو چیف جسٹس بھی لگا دیا، وہ بھی کل سے چیف جسٹس ہوں گے، عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور آج ہم نے دیکھا جو ریفرنس تھا، لاسٹ ریفرنس، اس میں شامل نہیں ہوئے جو منصور علی خان صاحب ہیں، ان کے علاوہ بھی 4 دیگر ججز تھے، یہ 5 ججز جو سینئر تھے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہیں گے۔ اس میں جو آج خط لکھا اور اس میں جس طرح سے جو جانے والے سبکدوش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جسٹس صاحب نے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کو بھی اور سننے والے جتنے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح ہلکی پھلکی انداز میں گفتگو کر رہے تھے، ویسے مجھ سے بھی کوئی ہلکا پھلکا ذرا شروع کرتے تو یہ پوچھتے کہ ایک جرنلسٹ کے لیے ہفتے میں 2 چھٹیاں کیسی ہوتی ہیں، اور آپ نے کب آخری بار چھٹی کی تھی، اور کب ٹائم پہ سوئے تھے، اور کب ٹائم پہ اٹھے تھے، تو اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم چاہیں گے آپ یہاں تشریف لائیں اسٹوڈیوز میں، اور ایک جو تفصیلی، چونکہ آپ کا جو کیریئر بھی ہے وہ کوئی یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے، تو نصف صدی کا قصہ ہے، تو آپ سے ہم یقیناً اس حوالے سے تو احمد اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ شراز خان صاحب، ہم تو پاکستان کی سیاست کو بھی بڑا لائٹر ٹاپک ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اب اس کو کتنا سیریس لے گا، 365 دن ہی کوئی وہ پنجابی میں کہتے ہیں سیاپا پڑا رہتا ہے، تو اس کو اب اور کتنا سیریس لینا ہے۔ ہم نے تو بڑے لائٹر انداز میں، اچھا جی منصور علی شاہ صاحب نے خط لے دیا، انہوں نے لائٹر انداز میں اپنے گلے شکوے بیان کر دیے، تو وہ میرے کچھ پروگرام ہیں، ظاہر ہے بڑے چینل ہیں یہاں پر، نیوز پہلے آئے، دوسرے آئے۔ میں تو 2010 میں جب میں نے تکبیر ٹی وی پر پروگرام شروع کیا، اس وقت ٹی وی نہیں تھے یہاں پر، تو بڑے لوگ دیکھتے تھے۔ آج کل وہ بڑے بڑے چینل ہیں، تو کچھ فیورٹ میرے بھی پروگرام ہیں، اس میں تجزیاتی پروگرام ہے۔ تو آج امریکہ میں ہمارے دوست ہیں آصف علی بھٹی، بہت سینئر صحافی ہیں، تو ان سے رات کو بات ہو رہی تھی، میرے پروگرام میں تھے، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس وقت یہ بڑے چینل 2-3 جو ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر کہ ان کی ویورشپ کتنی ہے، تو بتا رہا تھا کہ کوئی 7,000 پہ جا رہی تھی، کوئی 4,000 پہ جا رہی تھی۔ یہی چینل کچھ عرصہ پہلے 48، 49، 50,000 تک جا رہے ہوتے تھے یوٹیوب پر، انٹرنیشنل چینل ہے۔ تو چونکہ اسٹیریو ٹائپ گفتگو جو صبح ہوتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں لیکن ہم وہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ برحال اینی وے، چونکہ ہمارے اگر ہم کوئی یہاں موسم کی بات کریں، ماحولیات کی بات کریں، یوکی کی خبروں کی بات کریں، تو اوبیسلی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پھر اوبیسلی وہ نہیں دیکھیں گے۔ تو میں اسلام چینل کے ناظرین کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ میں صرف صحافی ہوں، اور کسی جماعت کو، کسی انسان کو آئیڈیالائز نہیں کرتا، اور میری زندگی میں بہت سارے آرٹیکل سے میں نے شروع کیا، تو ہم جو خبر دیں گے یا کوئی تجزیہ کریں گے وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو، یا نون لیگ کی طرف ہو، یا پیپلز پارٹی کی طرف ہو، اور آپ بھی یہی کرتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں۔ جو سچ ہوتا ہے، جو ریالٹی ہوتی ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، جو ڈیلیور کرتے ہیں، جو منہ سے نکلتا ہے، وہ اس میں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے اوبیسلی تو آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ کلک از ٹکنگ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب 13 مہینے پہلے آئے تھے، تو اب میں یہی کیا کرتا تھا، کہتا تھا، ان کی تعریف بھی کرتے تھے کہ قاضی صاحب آئے تو ہیں لیکن کلاک از ٹکنگ، اور وہ بہت متنازع بھی ہو سکتے ہیں، بہت اچھے چیف جسٹس بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آج وہ چلے گئے ہیں، تو جن لوگوں کے حق میں انہوں نے فیصلے دیے ہیں، جس طرح انہوں نے ملکی معاملات کو چلایا، جس طرح صحافیوں پر قدغنیں لگی، ہمارے میڈیا کی برادری اور یوٹیوبر کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ جس طرح وہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے، جس طرح ان کو ذلیل کرتے تھے، جس طرح ان کو مطلب ان کی تذلیل کرتے تھے، ان وکلاء کی وہ عزت نہیں کرتے تھے، یا ان کے ساتھ جس طرح بدتمیزی کرتے تھے، تو آج وہ کلاک بالآخر کلک ہو گئی، اور راؤنڈ سرکل میں وہ اپنے یعنی جا رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے اندر کیا بلکہ دنیا میں کہیں بھی پاکستانیوں کا فیس جب کریں گے، تو ان کے فیصلے جو ہے یا ان کی جو گفتگو ہے وہ بولے گی، اور ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ اپنے پریویس جو ثاقب نثار تھے، چودھری افتخار محمد چودھری تھے، کھوسہ تھے، ڈوگر کوٹ تھے، وہ جو لوگ ہیں وہ سارے کمپرومائز تھے، انہوں نے ملک کے قوم اور
کے حق میں فیصلے نہیں کیے. اور یہاں پر آپ نے منصور علی شاہ کا ذکر کیا. دیکھیں منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچھے دوست ہیں, اور اچھے دوست ہیں. جو یحییٰ آفریدی صاحب نئے چیف جسٹس بنے وہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں. صبح عطر معین اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور پھر یہ آپس میں یحییٰ آفریدی یہ ووک کرتے ہیں, پھر منصور علی شاہ کے چیمبر میں جاتے ہیں, وہاں پر وہ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں, پھر اپنے اپنے کورٹس روم میں چلے جاتے ہیں. تو اچھے دوست ہیں, بڑا ان کی لانگ ایسوسیشن ہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب نے سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف 8 ججوں نے جو فیصلہ دیا, اور وہ فیصلہ ہے اسپیشل سیٹوں کا, اس پر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے. پھر یہ ہوا کہ وہ جو یعنی پروسیجر جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس میں بینچ بنانے کی جو فارمیشن تھی وہ 3 جج جو ہے سینئر مل کر وہ فارمیشن بنائے گئے. لیکن قاضی صاحب کو جب تک مشکل پیش آئی منصور علی شاہ اور منیب اختر کی صورت میں, تو صدارتی آرڈیننس آ گیا, اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پھر انہوں نے کورٹ کی فارمیشن کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے فارمیشن بنائی. تو وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہے کہ وہ جو آپ نے صدارتی آرڈیننس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو پاس ہوا تھا, وہ حالانکہ وہ بھی اس میں منصور علی شاہ صاحب نے قاضی صاحب کا کو سپورٹ کیا تھا, اور ان کی مرضی سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوا تھا. اور جوڈیشل ایکٹیویزم میں ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تھوڑی کمی دیکھی ہے, اس طرح جس طرح ثاقب نثار صاحب وہ جسٹس افتخار محمد چودھری یہ آج خود نوٹس لے لیا کرتے تھے, اس میں تھوڑی کمی ہم نے دیکھی ہے. لیکن ان کے دل میں وہ بغض خاص کر کے اپوزیشن کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں, یا اس جو انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, جوڈیشل ریفرنس بھیجا تھا ان کے خلاف, جو بعد میں ان کے ساتھی ججوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ریسٹور بھی, اور پھر صدر عارف الوی صاحب نے وہ جوڈیشل ریفرنس واپس لے لیا تھا. لیکن ان کے سارے فیصلے, اور خاص کر کے وہ 12 جنوری کا فیصلہ جو ہے بلہ واپس لینے والا, وہ بیسیکلی سارے الیکشن کو, ساری جمہوریت کو, سارے سسٹم کو اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں ان کو کنٹروورشل بناتا ہے. اور خاص کر کے جب آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں, تو بہت سارے لوگ اللیگلی طریقے سے ڈیٹین ہیں. اور یہ ہم جب کرتے ہیں نا بات سیاسی, تو یہ صحافی ہوں اٹھا لیے گئے, ان کے پروگرام بند ہو گئے, میڈیا پر جو پابندیاں لگی, اور ہم یہاں بیٹھ کر بھی ڈرتے ہیں کہ ہم ریاست کے ان طاقتور حلقوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی طاقتور حلقوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا. تو جمہوریت میں جس کا جو رول ہوتا ہے وہی تو ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کو, سول بالادستی کو, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, یعنی ہوم منسٹری سے لے کر وزارت خزانہ کی صورت میں لے کر فارن افیئرز کی صورت میں ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ جوڈیشری کے خلاف ہیں, پاکستان کی فوج ایسے ادارہ کے خلاف ہیں. نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ریاست کا تیسرا بڑا ستون ہے. یعنی پارلیمنٹ ہے, آپ کی انتظامیہ ہے, مکنہ ہے, یہ آپ کی عدلیہ ہے, یہ ستون ہے ریاست کے. تو فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ساتھ آتی ہے, اس کی ڈومین میں آتی ہے, لیکن جوڈیشری یا عدلیہ آزاد ہے. آپ نے 26ویں امینڈمنٹ جو کی ہے, کیا ہم نے پچھلے پروگرام میں یا آپ نے یا میں نے یہ ڈسکس نہیں کیا, یا لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اور صرف 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, یہ صرف منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے, چونکہ ان کا جو کنڈکٹ ہے, پھر 8 ججوں کے ساتھ انہوں نے فیصلہ جو دیا اسپیشل سیٹوں والا, بلے کی ریسٹوریشن والی جو بات انہوں نے کی, پھر 6 جج جو ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں پر مداخلت ہوتی ہے, ایجنسیاں ہم سے زبردستی یہ جو فیصلے کرواتی ہیں, ہمیں فورس کیا جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات تھے. تو آخر بات کہاں تک ختم ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنانے دیا گیا, یا ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ
जस्टिस शैया अफरीदी कोई बुरे जज हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट में 2030 तक का अभी टाइम था, लेकिन इन्होंने 2000 अभी इनको चीफ जस्टिस बना दिया और मंसूर अली शाह साहब को का रास्ता रोका और मुनीब अख्तर का रास्ता रोका। वजह क्या है कि वो इलेक्शन जो है ये हर जुबान ज़द-ए-आम है, ये स्क्रिप्ट पहले ही सबको नजर आ रहा था और 36 दिन आपने पूरे एक माहौल बनाया, लाखों करोड़ों जो शिराज खान साहब, एक बस अरबों आपसे पैसे मैं कौन यहाँ के पे आप चाहूंगी कि ये भी ऐड कर दीजिएगा कि ठीक है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोका गया चीफ जस्टिस बनने से, लेकिन फैसला कोई भी अकेला चीफ जस्टिस नहीं करता, अकेला कोई एक जज नहीं करता। उनकी अभी रिटायरमेंट में टाइम बाकी है, अभी भी वो केसेस सुनेंगे, बेंच भी है। आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा अदलिया की तनाजुर में या इनको ज़्यादा बड़ा लॉस ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, या ये जो एक आइनी बेंच बनेगा और आइनी मामलात या पॉलिटिकल मैटर्स वहाँ पर डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, ये इनको लग रहा है कि इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है या अथॉरिटी शेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अभी भी क्या बेंच किसी भी बेंच में हो सकते हैं, फैसले भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इंसाफ भी कर सकते हैं, केसेस भी सुन सकते हैं, तो सिर्फ एक ओहदा ही है जो कि उससे दूर हो गए हैं वो। देखिए ना, अब अगर यहाँ आपको ये सीईओ बनाया जाए या मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए, सिनाटी में आप हैं और एक रूल तय पहले से हो, 1997 से ये रूल तय था कि कौन बनेगा, और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो मूवमेंट चली थी वकला की, उसमें जुडिशरी में एक पहले असूल तय हो गया था कि कौन कब चीफ जस्टिस बनेगा सिनाटी की बुनियाद पर। ये अदलिया ने खुद ही इसी तरह हमने देखा, कोई थोड़े अरसे के लिए आया, कोई ज्यादा अरसे के लिए आया। काजी फाइज साहब उसी असूल के तहत चीफ जस्टिस बने थे। बेसिकली ये बात ठीक है कि वो वहां जज रहेंगे, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि 21 अक्टूबर 2024 के बाद पाकिस्तान की अदलिया आजाद नहीं रही, सियासी लोगों के अंडर आ गई है और सियासी लोग अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए जो जुडिशरी को इस्तेमाल करेंगे। और ये असूल बनाना कि सीनियर 3 जो जज होंगे उसमें से एक जज बनाया जाएगा, तो वो आप कोशिश कर सकते हैं ना, मतलब कि बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर मुझसे आप हैसियत साफी या वकील पूछें कि फलां जज का क्या कंडक्ट होगा, तो मैं उसके पुराने फैसले, उसका प्रोफाइल निकाल कर बता दूंगा कि ये इस तरह का आदमी है, ये इंसानी हकूक के हवाले से इसने इस तरह के फासले किए हैं, इसने ये यहाँ पर जो है ये डंडी मारी है, ये किस बेंच और किस बार से आया है, ये सारी उसकी प्रोफाइल देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं। तो यहाँ 3 जज जब चीफ जज उसमें से बनाएंगे तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सियासी जमातें ये असेस कर सकती हैं कि इसकी टिल्ट किस तरफ है, क्योंकि हमारा एक माशरा पूरा या सिस्टम पूरा एक शेकी या फ्राइजाइल है। हमारे अदारे मजबूत नहीं है, हमारी अदलिया को कुछ अरसे से हम यहाँ मार्शल नहीं आया, थैंक्स गॉड फॉर दैट, बट अदलिया को इस्तेमाल किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक एक्सटेंशन एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को बनाया और उनसे फैसले करवाए। यही हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी के केस में, जब वो उनको नायल करार दिया गया। यही हमने देखा नवाज शरीफ को जब नायल करार दिया गया। यही हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत जब अप्रैल 2022 में खत्म हुई तो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुला, उसकी अदालत खुल गई, बल्कि हाई कोर्ट भी खुल गई। उस वक्त जनाब अतर मैनुल्लाह साहब उसके चीफ जस्टिस थे, और वो किसने खुलवाई थी? वो जनरल बाजवा ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने खुलवाई थी। और क्यों खुलवाई थी कि हाँ, अगर ये नहीं मानेंगे इस फैसले को आज, तो फिर ओबियसली या नहीं घर जाएंगे। या शिराज खान साहब, आपको नहीं लगता अहमद भी यहाँ पे बैठे हैं, अक्सर हम जब बात करते हैं और हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में ज़मीर के जागने की भी टाइमिंग है, उसको भी बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है कि सबने अपना अपना टाइम रखा हुआ है कि आज मेरा ज़मीर जाग गया है और आज मैं आईन और कानून की बात करूँगा। जब अपने ऊपर आई है, जब अपनी पर्सनल बैटल हार गए हैं चीफ जस्टिस ना बनने की, तो उसके बाद उनको ये लगा कि पहले भी ऐसा खत तो वो उस वक्त भी लिख सकते थे। चीफ जस्टिस जब कोई ना लिखे उन्होंने,
नहीं उन्होंने लिखे, पहला भी खत लिखा है और उसके बाद काजी साहब ने उसको पब्लिक किया और उसका जवाब भी दिया। सिर्फ एक नुकता नीला मुझे कवर करने दें जो तमीद है मेरी। मसला ये है कि वो बैठेंगे लेकिन मसाइल सारे जो है, जो भी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मसला जाएगा वो एक आईनी अदालत या आईनी बेंच जो है वो बन गया है, तो इनके दायरे अख्तियार में नहीं रहेगा कुछ। ये तो डे टू डे जो क्रिमिनल केसेस हैं या दूसरे इस तरह के केसेस हैं, कत्ल के मामला, ये देखेंगे आइन से मुतल्लिका, उसकी तशरीह से मुतल्लिका जो भी केस है वो अदालत अलग बनेगी, बेंच अलग बनेगा और उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, उसको हेड कौन करेगा ये येट टू सी। लेकिन मंसूर अली शाह को नहीं बनाएंगे, मुनीब अख्तर को नहीं बनाएंगे, वो कोई तीसरे चौथे पांचवें नंबर के कैटर के जो जज हैं उनको लगाएंगे ताकि वो मैनेज होंगे। अगर चीफ जस्टिस यही अफरीदी को लगाते हैं तो फिर भी आप उसको देख सकते हैं कि अगर वो उसका सरबराह होते हैं तो फिर ये आप समझ लें कि हाई कोर्ट की कुछ पावर्स या कोई इज्जत या कोई तौकीर या कोई अथॉरिटी या कोई उसकी इम्पार्शियलिटी रह जाएगी। अदरवाइज अगर उन्होंने इनको बनाना होता तो फिर ये सारा मामला, ये 26वीं तरमीम, और फिर एक यहाँ पर एक और काबिल अफसोस बात है कि वो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बात करती थी, जिसने कुर्बानियों से एक लंबी उसकी फहरिस्त है, यानी बेनजीर भुट्टो को देख लें आप, इनके मंशूर को पढ़ें, वो पीपल्स पार्टी और वो भुट्टो साहब का नवासा जिसकी अभी उड़ान होनी है, जिसने अभी वजीर आज़म बनना है, वो इस पर खुशियां बना रहा है। तो वो इस्तेमाल हो गया है इस आईनी तरमीम के से कि वो किसके लिए काम करता है और क्यों करता है, चूंकि इलेक्शन ये जीत नहीं सकते और वो इसी दौर के अंदर वजीर आज़म बनना चाहता है बिलावल भुट्टो। तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि एक तरफ आप पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सारे पत्ते इसलिए फेंक रही है इसके अंदर, वो अपने असूल, वो अपनी कुर्बानियां, वो सब कुछ भूल गए, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपने इक़्तिदार को चूंकि मैनेजेबल है। मुझे अफसोस है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर लंदन से लेके गए थे तो वो उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, चूंकि वो कभी तो वो एक लीडर थे, कभी तो वो बात करते, कभी वो सिविल बालादस्ती की बात करते, कभी वो आइन के रेस्टोरेशन की बात करते, लेकिन उनके अपने ग्रजेस हैं, उनको इस तरह उन्होंने जकड़ के रख दिया है कि वो अपने ग्रजेस हैं। तो हम आइडियली ये जो आपने ये अभी बुशरा बीबी की बात की या इमरान खान की बहनों की बात की, ये एक टेस्टर है और यहाँ पर केसेस मेरिट के हिसाब से नहीं सुने जाते। ये सियासी जो लोग होते हैं उनके केसेस सियासत के हवाले से सुने जाते हैं। लेकिन शहराज खान साहब, बिल्कुल हमने माजी में भी इसी तरह से देखा, हाल में भी। अच्छा, ये अदालती मामलात के अलावा जो सियासी मामलात हैं उस पर भी हम आपकी राय लेना चाहेंगे। शहराज खान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अभी आपने गुफ्तगू में एक जो इशारा किया इस जानिब के पाकिस्तान में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल हम जानते हैं और ऐसा हो रहा है, चूँकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि केसेस जब बनाने होते हैं तो वो बना भी दिए जाते हैं और जब वो केसेस ख़त्म करने होते हैं ख़त्म भी कर दिए जाते हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि अचानक से रिहाई हुई इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की, और फिर आज जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनको भी ज़मानत मिल गई। तो एक दौर वो था जब हमने देखा था कि इसी तरह से जो शरीफ फैमिली है उनके ऊपर जो केसेस बन सकता था वो बनाया गया, जितने लोगों को जेल में डाला जा सकता था वो डाला गया, और लेकिन जब उनको ड्राई क्लीन करना था तो वो देखते ही देखते तमाम चीज़ें हो गई। अभी भी क्या ये उसी तरह से दोबारा से उस एपिसोड रिपीट हो रही है कि इमरान खान साहब के जो मुतल्लिक अफराद थे जिनका शायद कोई सियासत से भी बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, जब उनको कुछ मकसूद था उनको जेल में डालना, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से केसेस बना के एक के बाद दूसरा केस खुद जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर हमने देखा कि कितने केसेस बनाए गए थे, लेकिन अब उनको ज़मानत मिल गई। उससे पहले तो 10 माह तक ज़मानत भी ना मिल पाई। तो क्या इससे सारे चीज़ों से हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कोई रिलीफ इमरान खान साहब को भी मिल सकता है? इसमें एक और बात ऐड कर लें, पहले डिनर सेट इतना इम्पोर्टेंट था कि उसकी वो क्यों ले लिया, वो उसके पैसे क्यों नहीं दिए, ये क्यों नहीं हुआ, उस पे ज़मानत नहीं मिल रही थी। अब डिनर सेट भी भूल गए, अब इद्दत में निकाह केस भी भूल गए, तो अब कैसे इतनी जल्दी कैसे हो जाता है ये आप यकीनन जानते होंगे कि ये जादू कैसे होता है। नहीं वो असल में मैं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हम बैठे हुए बाहर के मुल्क में, यानी बाहर, ये तो हमारा मुल्क है बताना,
अगर हम यहाँ से बात करें ना और सच बोलना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे पाकिस्तान की फौज के हम मुखालिफ हैं। हम हालांकि हम एक शख्स के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की फौज को हम सल्यूट करते हैं कि वो हिफाजत करती है, हमारे सरहदों की हिफाजत करती है। आज भी हम जब बात कर रहे हैं टेररिज्म में, दहशतगर्दी की जंग में, कोयटा में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर के माज के ऊपर हमारी फौज जाने दे रही है। और अगर यकीन करें, मैं गया हूँ कश्मीर की जो 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 चौकियां हैं, यानी 0 पॉइंट चौकी है, जो सारे मैंने विजिट किया, यकीन करें नीलम वहां खड़े भी नहीं हो सकते। यानी वो उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, यानी रात को वो सो नहीं सकते। मैं जब गया तो मैं तो वहाँ इतनी इतनी गर्द थी, इतना तूफान चल रहा था कि वहां पर खड़ा होना मुश्किल नहीं था। लेकिन वो रात को जागते हैं, 4-4 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बस करते हैं। और फिर फौज भी नहीं, जो एजेंसियां हैं जो वो जिस तरह काम करती हैं, फिर उससे फौज बदनाम होती है। जो क़यादत आती है वो अपने हिसाब से चलाती है मुल्क को। एक आर्मी चीफ होता है तो जब वो इक़्तिदार में होता है तो हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, जब वो इक़्तिदार से चला जाता है हम उसकी दुर्गत बनाते हैं, जैसे बाजवा साहब है या जनरल ज़िया-उल हक थे या जनरल मुशर्रफ थे या उससे पहले जो कुछ करते रहते हैं। मसला ये है कि सच्ची बात तो ये है कि या तो ये हुक्मरान आपस में मिल जाएं और मिलकर सिविल बालादस्ती में, मिसाक जमहूरियत हुआ 2006 में, तो बाद में मजाक जमहूरियत हो गया, और ये आज एक दूसरे की तारीफें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर। हमने पार्लियामेंट को सोवरन करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमने मिसाक जमहूरियत किया था, लेकिन आप ही ने उसी जमहूरियत को मजाक जमहूरियत में तब्दील कर दिया। और जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को निकाला गया, 4 जर्नलों ने बुलाकर उनको कहा कि आप इस्तीफा दें, और बिठाए रखा पूरा दिन और बंद रखा, तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद वकला की तहरीक चली और मियां नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी का दौर था, मियां नवाज शरीफ साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर रेस्टोरेशन ऑफ द जजेस ऑफ जुडिशरी और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को रेस्टोर कराने के लिए वो लॉन्ग मार्च उन्होंने किया था। और जब गुजरावाला लाहौर से चले और गुजरावाला पहुंचे तो वहां से जो है वो यूसुफ रजा गिलानी ने वादा किया और तकरीर की कि उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे कि हम इसको बहाल कर देंगे जुडिशरी को। तो मियां साहब ने लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म किया था। और फिर उसी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से नवाज शरीफ साहब ने मेमो स्कैंडल में काला कोट पहनकर जाकर उनको नायल करार दिलवाया था। यानी यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त नायल हो गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब को खुद वकील बनकर काला कोट पहनकर अदालत में गए थे मेमो स्कैंडल में। तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जब का दौर आया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। तो एक तरफ इमरान खान की अपोजिशन थी, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब के खिलाफ हो गई थी, और मियां साहब को 2017 में नायल करार दे दिया था। और अभी जो बिलावल भुट्टो साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अरेंजमेंट किया, ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी और फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इस्लामाबाद तक आए, उन्होंने जलसे किए, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा किया, मौलाना फजल रहमान साहब कितने धरने लेके आ गए, कितने मतलब इन्होंने अफरा तफरी की। लेकिन अभी फिर एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने ये किया कि 8 फरवरी का चूंकि इलेक्शन जिस तरह रिग्ड हुआ, जिस तरह एक अरेंजमेंट बनाया गया, तो बेसिकली मसला हमारा ये है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को दोष नहीं भी देते हैं, लेकिन सेम टाइम अपने पॉलिटिशियनों को भी दोष देते हैं कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए वो झूला झूलते हैं एस्टेब्लिशमेंट का और उनके साथ बना कर रखते हैं, और अपोजिशन जितनी होती है उसको जेलों में डाल देते हैं। यही सब कुछ जो है हमने देखा माजी में, इन्हीं जमातों के ये जो जरदारी साहब हैं तकरीबन 9 या 11 साल ये जेल में रहे, ये नवाज शरीफ के दौर में, फिर इसी तरह नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, फिर उन्हें 3 दफा इक़्तिदार से अलग होना पड़ा, 90 की दहाई में चले जाएं टाइम नहीं है। तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई 18 महीने के बाद 88 में, जब वो उनकी हुकूमत बनी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ बनी थी। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 18 महीने के बाद जो है उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। गुलाम इस्हाक खान ने आइन की 58(2)(b) की तलवार जो
जनरल ज़िया-उल हक ने डाली थी, उसी की तलवार चलाई, कलाड़ा चलाया और हुकूमत खत्म हुई। इसी के तहत जो है नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई 90 के अंदर। 2 दफा बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई, 2 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई। तो फिर आखिर 97 में जब मियां साहब इलेक्शन जीते, 2/3 मेजॉरिटी आई और इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे बारी मैंडेट मिला है। लेकिन फिर उन्होंने जब आंखें दिखाई एस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर 99 में 12 अक्टूबर 99 में मार्शल लॉ आ गया। तो यहाँ पर देखना सिर्फ ये है कि जितने भी केस बनते हैं, आई मस्ट से मुकरी ऑफ द जस्टिस के नाम पर केसेस बनते हैं, जिसमें हमारी अदालतें, हमारी प्रोसिक्यूशन सिस्टम सारा उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। और आनन फानन अब देखते हैं कि रात की तारीकी में सुबह के वक्त दरवाजे खुलते हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। 12 दिन से इमरान खान से कोई नहीं मिला था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आईनी तरमीम के मामले में फिर जाकर वकील भी मिले और फिर सारी मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू हुआ। उनकी बहनों को भी आज़ादी मिली। उनको डाला क्यों था? वो तो गैर सियासी थी। देखें, जब कोई किसी का भाई, मैं अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं चला जाऊं, जेल में चला जाऊं, कोई मेरे ऊपर कोई केस बने, तो मेरे कुंबा कबीला या फैमिली के अफराद सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। उसके बाद मेरे साथी बरादरी है, वो मेरे साथ खड़ी होगी। तो जो फैमिली के लोग हैं, ये पार्टी जो हमारी साथियों की क्या पार्टी होती है, लेकिन जो बरादरी साथी बरादरी है वो आवाज उठाएगी। तो बहनें अगर वो अपने भाई के लिए तड़पती हैं, वो सियासी बयान दे रही थी अलीमा खान, तो इमरान खान ने मना कर दिया है, आप सियासत नहीं कर सकती। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब को या बहनों को छोड़ा है, या ये हुकूमत ये समझती है या एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वी आर आउट ऑफ द डेंजर, जो हमारी डेंजर थी, यानी जस्टिस आईनी तरमीम करने के बाद मंसूर अली शाह को सामने ना लाकर, उसको चीफ जस्टिस ना बनाकर, मुनीर अख्तर को चीफ जस्टिस ना बनाकर, और आइन को हमने जो खलवाड़ किया और जिस तरह की आईनी तरमीम हमने की, अब हमारा इलेक्शन 8 फरवरी का कहीं अवडू नहीं हो सकता, शिराज खान अनडू नहीं हो साहब, सकता। ये भी तो डर है ना कि इलेक्शन तो कभी भी हो सकता है, वो तो तलवार ऐसे कि हर वक्त लटकी रहती है 45 और 47 की वजह से। तो ये भी तो डर था हुकूमत को कि इमरान खान अगर इक्तिदार में आ गए तो वो सारे केसेस, वो मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो 100 केसेस इन पे बने। एक बात मैं नीलम कहना चाह रहा हूँ, देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो इमरान खान साहब है ना, ही शुड रियलाइज कि आपको लोगों ने आपको पॉपुलैरिटी दी, आप अनपॉपुलर थे, आपकी हुकूमत अनपॉपुलर थी, और उस वक्त आप सारे ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। लेकिन आपने एक स्टैंड लिया, आपके साथ ज्यादती हुई, बाहर से साजिश हुई या इंटरनली साजिश हुई, डोंट डिबेट, वी नॉट डिबेटिंग ऑन दैट वन, ये सारी चीजें बहरहाल वक्त के साथ साथ सामने आ गई हैं। लेकिन अब अप्रैल 2022 से लेकर अभी देख लें कि 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, लोग आपके साथ खड़े रहे, लोगों ने कुर्बानियां दी, लोगों ने आपको वोटें दी, लोगों ने आपके खिलाफ मुजाहरे किए, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। नो डाउट कि ये सारे लोग जो आपको चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, ये पीटीआई के वर्कर्स नहीं है। पीटीआई तो सारी जेलों में बंद है, बड़ी लीडरशिप या छोड़ गई है या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली गई है। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी सियासतदान वो अच्छा होता है जो हालात के साथ चलता है, मुल्क और कौम के साथ चलता है, हालात को बेहतर करने की कोशिश करता है, अपने वर्करों को, अपने पार्टी लोगों को, अपनी पॉपुलैरिटी को मुल्क और कौम के लिए, जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करता है। देखें, हमारा जो फौजी अदारा है या जो एस्टेब्लिशमेंट आप कर लें, उसके साथ आपकी डायरेक्ट अगर लड़ाई होगी तो जनरल मुनीर आसम साहब रिटायर हो जाएंगे, कोई और जनरल साहब है, जनरल ज़ाहिर चीफ जो है वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अदारे जो है वो तो वहीं पर रहते हैं। तो उनके साथ आपको एक उसको स्पेस देना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि अलीमा खान के रिलीज होने के बाद, बुशरा बीबी के को रिहाई मिलने के बाद, इमरान खान की अगर टोन एस्टेब्लिशमेंट के या हमारी फौज के सरबराहों के खिलाफ अगर वो उसमें कुछ कमी आती है, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको भी रिहाई मिल सकती है। लेकिन अगर वो उनका लबो लहजा वही रहता है, वही जो है वो टिट फॉर टैट वाली बात करेंगे, तो ओबियसली जो बाहर लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो अभी इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में तो यही है कि इमरान खान की रिहाई हमारी तबाही का बायस बनेगी,
लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको सीरियस लेंगे। हमारे पास हुकूमत भी है, हम सदर भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, हमारे कुंबा कबीला, हमारी बरादरियां, हमारी पार्टी सारी इक़्तिदार में बैठी हुई है। रॉन्ग या राइट मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन हमें लोग सीरियस नहीं लेते। कौन नवाज शरीफ को सुनता है, आप मुझे बताएं, कौन शहबाज शरीफ को सुनता है, कौन बिलावल भुट्टो को सीरियस लेता है? अगर कोई आप इस वक्त जो भी प्रोग्राम आप यूट्यूब का देखें, टीवी का प्रोग्राम देखें, उसके थंबनेल देखें, झूठ है सच है, इमरान खान की फोटो के बगैर, उसका नाम लिख के बगैर, ना वो तो यूट्यूब का कोई लिंक खोलता है, ना वो प्रोग्राम देखता है। सच नहीं लिखते, झूठ ही लिखते हैं उस थंबनेल के ऊपर। लेकिन बहरहाल वही चलता है। हालांकि पाकिस्तान के स्टेट ने उनके नाम को मेंशन करने के लिए यानी उस पर पाबंदी लगाई हुई है। पानी पीटीआई कहेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इमरान ऐसी खान ही का नाम नहीं ले पाबंदी सकते। एक शिराज खान साहब उस वक्त भी लगी थी नवाज शरीफ का नाम लेने पर और मरियम नवाज का नाम लेने पर, जब इमरान खान की हुकूमत थी। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। लेकिन ऑब्वियसली अब उम्मीद करते हैं कि इमरान खान, अब ये जो बर्फ पिघलती नजर आ रही है, बेहतरी आ सके, इमरान खान भी बाहर आ सके, क्योंकि सभी जानते हैं कि उनके ऊपर भी बहुत सारे जो मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।